Hello dear students, welcome you all in Vedant International School. That you all are asking the question that why the ma'am is saying so, because you know that after the lockdown we have been started our lectures and we have continued it very successfully. That is why I said to you that welcome you all in our Vedant International School. So guys, we have started fourth chapter. Its name is A Truly Beautiful Mind. It is a chapter regarding Albert Einstein, and I told you that Einstein is world famous, or he is known by the people as the name of genius. No, so in the last lecture, in my previous lecture, I told you that what is the meaning of genius? Because genius gives us lot of things. Genius is a person that is master in particular matter or in a particular subject. So here Einstein, we have started the lesson about Einstein and how he was born. At the time of the birth, his head is little bit big. So Einstein's mom has little bit worry about his head. And Einstein had completed 2.5 years. Then also he was not able to speak. That is another tension the Einstein's mother was having. And the next thing is that whenever he was means in the younger old age only, at that time he was not supposed to play with the other children because he didn't like that. He had great interest in only the mechanical toys. So when his newborn sister, her name is Maja, whenever she was born, Einstein asked one question that where are wheels? Means what, he was supposed to be very interested in the mechanical toys, and that is why he was busy with the toys only, and that is why his other playmates were kept one name for the Einstein, that is brother Boring, because he was not so much involved in the, we can say that students or that playmates. So here whenever then we move ahead, the headmaster also foretold that about the future of the Einstein, that whatever the profession Einstein might be choose, he was he got the so successful, we can get success in that matter. Means he was a simple guy. That is why his mother was in a tension, and she joined Einstein in a violin classes, because she was thinking that by doing so Einstein may be a amateur violinist and he would earn his livelihood. So up to this we have completed this chapter. And the author here, author means himself, the Einstein is, means we can say that A Truly Beautiful Mind is a chapter, it is the autobiography of Einstein. So Einstein is saying that he is not a bad student at all. He was good in all the subjects, but he had great interest in maths and physics. And he was only involved in that, surrounded in that activities of maths and physics. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. Why? Because he didn't like the rules and regulations of the school. He was not able to learn all the subjects, example, essays, geography, other subjects would be there. So he didn't like that subjects because he was thinking that if all the matter is given in the textbook, then why is there any need to learn that topic? Whenever we needed it, we can guess it or we can take it from the textbook. So he was not giving much interest in the books like essays, geography and other subjects. But he had more interest in science, and he was thinking that he was supposed to accept his admission in all the standard, and he was interested in learning the subjects like physics and maths. He had not interested in learning other subjects, and that is his problem. You know what is the pattern of education system. In suppose you are in standard 9, okay, so you have to learn all the subjects. जैसे तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो तुम लोगों को सपोज किसी बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, किसी को एसएस बहुत अच्छा लगता है, तो उन बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वो तो पढ़ने ही हैं, पर जो अच्छे नहीं लगते वो भी पढ़ने पड़ते हैं. दैट इज द एजुकेशन पैटर्न ऑफ आवर इंडिया. तो जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, नॉट इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी कुछ जैसे तुमको माना जाता है कि फिनलैंड जो है उसका एजुकेशन फर्स्ट नंबर पे है पूरे दुनिया में, बिकॉज इट्स एजुकेशन इज रियली यूनिक. जिसको वहाँ पे जो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में उसको जो चाहिए
आइंस्टाइन वांटेड। सेम एजुकेशन आइंस्टाइन को चाहिए था पर उसको मिला नहीं, इसलिए whenever he was 15 years old, जब वो 15 years का था तो वो टेंशन में आ गया कि अभी मैं क्या करूँ। उसको सफोकेशन होने लगा, उसको सूझ नहीं रहा था, क्योंकि ये एज ही वैसी होती है, तुमको पता है 15 years ऑफ एज है ना, 10th 11th में वो होगा तो टेंशन में आ ही जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं तो कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, इस तरह के जो भी डाउट्स है उसके माइंड में आते थे। फिर क्या हुआ देखो, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथ्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at the university in Zurich, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। यहाँ पे दिया है कि he was not supposed to learn only science। साइंस में भी देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं, काफी होते हैं वैसे तो, अभी मेनली देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उसको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट था, वो थे फिजिक्स और मैथ्स। दूसरा केमिस्ट्री बायो में उसको इंटरेस्ट था नहीं। तो अगर इसको यूनिवर्सिटी में उसने डिसाइड किया कि मैं मेरा एक्स्ट्रा जो आगे का पीरियड है वो मैं जूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे मैं स्पेंड करूंगा, पर उसको एडमिशन देगा कौन, क्योंकि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क है, बाकी सब्जेक्ट्स में वो फेल है या 100 मार्क्स है, तो ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलना मुश्किल था, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में था। ये डैशिंग मीन्स बहुत ही उसकी पर्सनैलिटी जोरदार थी। तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में उसका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो ऐसे पर्सन को जॉब देगा कौन, या जॉब तो दूर की बात है, उसको एजुकेशन फर्दर अगर करना है तो एडमिशन देगा कौन। आगे देखते देखो, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलिवा मैरिक। ये हमने कंप्लीट किया था तो अभी मैं एक बार रीड कर रही हूँ। Whom he found to be a clever creature. This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survey in which they put their affection into words. Mixing silence with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on the relativity to the victorious conclusion. Abhi Mileva Maric was a lady that Einstein fell in love with her. Einstein को मिलेवा मैरिक से लव हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उससे भी क्लेवर थी और वो जूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहाँ पे बहुत ही कम लेडीज पढ़ने के लिए आते थे, और उनके दूसरे जो क्लासमेट्स थे उनके साथ ऑड्स का मीनिंग है कि आइंस्टाइन की बनती नहीं थी। दैट इज व्हाई ओनली द लेडी दैट मिलेवा मैरिक वाज देयर, दैट आइंस्टाइन वाज फीलिंग कंफर्टेबल विद द लेडी। उसको सिर्फ ये लड़की के साथ ही अच्छा लगता था। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप टर्न्स टू द लवमेट्स, और उनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक दूसरे को लव करने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेवा मैरिक का ये था कि जब आइंस्टाइन ने थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो प्रूव करने में आइंस्टाइन के साथ वो मेन थी, क्योंकि आइंस्टाइन ने जब सोचा कि जब वो मिलेवा मैरिक के साथ होता था तो उसको टाइम का पता नहीं चलता था। ओके, जैसे देखो तुम लोग क्लासरूम में बैठते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट का अगर वो लेक्चर नहीं है तो तुमको वो 30 मिनट्स 300 मिनट जैसे लगते हैं, और अगर सपोज तुम्हारे इंटरेस्ट का कोई लेक्चर चल रहा है क्लास में तो तुमको वो 30 मिनट जो है वो 3 मिनट की तरह लगते हैं। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट, दैट हाउ इंटरेस्टेड वी आर इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर जाता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने बोला है कि बिकॉज ऑफ मिलेवा he was supposed to make the conclusion over the great theory, that is theory of relativity, क्योंकि उसकी वजह से उसने theory of relativity के बारे में बताया है। अभी क्वेश्चन ये है कि theory of relativity क्या है, जो मैंने तुमको भी एक्सप्लेन किया कि जो चीज में तुमको इंटरेस्ट होता है उसको करते करते तुम्हारा टाइम बहुत फटाफट स्पेंड होता है, और जो चीज में तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो वो तुम लोग जब करने जाते हो तो तुमको वो टाइम इतना लंबा लगता है, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको प्रूव करने में मिलेवा ने उसका बहुत ही साथ दिया। आगे दिया हुआ है देखो, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। जब वो 21 ईयर्स का हुआ उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट स्टिल ही वॉज अनएम्प्लॉयड, यानी उसको कोई जॉब अब तक नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern.
फिर 2 साल के बाद यानी 1900 में जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन 1902 में उसको, और उसके बीच में उसने फाइनल पर्सनल लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया। वो लेक्चर्स देता था, जिसकी वजह से 1902 में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक जॉब पैटेंट ऑफिस में जॉब मिला, जहाँ वो ऑफिस कहाँ पे था, बर्न में था, ये सिटी का नाम है। While he was supposed in the patent office, while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret, and he said to have the jokingly called the desk drawer at the work, the Bureau of the Theoretical Physics, where जैसे पैटेंट ऑफिस में उस ऑफिस के अंदर उसको टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिला था, इट मीन्स कि वो वहाँ पे क्या करता था, जो भी इन्वेंशंस वहाँ पे लोग सबमिट करते थे उसको वो चेकआउट करता था, और उससे उसको काफी नए नए आइडियाज मिलते थे, और उसमें से सीख के वो खुद के इन्वेंशंस करता था, और वो इन्वेंशन जो थे वो सीक्रेट थे, उसने वो इन्वेंशंस के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, इसलिए वो इन्वेंशंस एक ड्रॉअर में रखता था, और वो ड्रॉअर को उसने एक नाम दिया था, उसका नाम था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। यानी वो ड्रॉअर के अंदर उसके सारे इन्वेंशंस थे जो उसको एक मैच्योरिटी आने के बाद उसको पब्लिश करने थे, क्योंकि अभी बहुत छोटा था, उसने इन्वेंशंस तो किए थे, बट ही वाज ओनली 23 और 24 ऑफ एज। तो इतने यंग अगर बच्चा कोई इन्वेंट करता है तो नो वन वुड वी कैन से दैट ट्रस्ट हिम, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसने वो ड्रॉअर के अंदर सारे इन्वेंशंस रखे थे उसके खुद के। एंड द मेन थिंग इज दैट वो सारे इन्वेंशन सीक्रेट थे, उसने वो इन्वेंशंस के बारे में किसी को बताया हुआ नहीं था, इसीलिए उसने वहाँ पे लिखा है कि वो जो सीक्रेट पेपर इन्वेंशंस के उसने ड्रॉअर के अंदर रखे थे, वो ड्रॉअर को जोकिंगली क्या नाम दिया था उसने, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ओके, अभी one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after the journey, after one of them has been moving very fast relative to other, and from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square. This is the formula for theory of relativity, that E is equal to mc squares. It means what? यहाँ पे आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स व्हाट, कि टाइम और डिस्टेंस उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। सपोज मैंने तुमको क्लास का एग्जांपल भी दिया, सपोज दो वॉच है, उसको हमने एक साथ, जैसे मेरी वॉच है और तुम्हारी वॉच है, हमने उसको एक साथ टाइम सेट किया है, और हम लोग काफी जर्नी करने के बाद जब हमारा टाइम देखेंगे तो उसमें हम दोनों में से किसी की एक घड़ी एक तो आगे होगी या किसी की घड़ी पीछे होगी। मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसे जैसे उसका जर्नी होगा, यानी डिस्टेंस मैटर्स, तो ये रिलेट करता है डिस्टेंस और इंटरेस्ट के ऊपर। और उसने दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दुनिया के सामने लाई इन द ईयर 1905, और वो थ्योरी से पूरी दुनिया को मास और एनर्जी का डिफरेंस समझ में आया, इसीलिए वो थ्योरी को E इज इक्वल टू mc स्क्वायर उसका उसने नाम दिया। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम के अंदर लाइट का जो स्पीड होता है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये तुमको सिर्फ नॉलेज के लिए दिया हुआ है। फिर व्हेन यू सी, जैसे देखो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है, अभी तुम लोग बोलोगे मैम मैं देती तो तुम ऐसा बोलते बच्चे कि मैम आप कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो, देखो उसने खुद ने एग्जाम्पल दिया है। व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, देयर इज रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम लोग हमारी गर्लफ्रेंड के साथ बैठते हैं एग्जाम्पल, ओके, या मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठती हूँ, 2 घंटा में उसके साथ बैठूंगी पर वो यूं चला जाएगा टाइम, अरे 2 घंटे हो गए, हम लोग 2 घंटे से एक साथ बैठे हैं। और अगर वही टाइम पे 2 मिनट के लिए तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती बेटा किचन में वो दूध ऊपर आ रहा है थोड़ा ध्यान देना ना, वो 2 मिनट तुमको 2 घंटे की तरह लगेंगे। दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मीन्स व्हाट, टाइम और डिस्टेंस ये हमारे सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, आइंस्टाइन ने मोस्ट डिफिकल्ट जो भी प्रॉब्लम्स थे फिजिक्स के वो सॉल्व किए। His private life was unraveling
उसकी जो लाइफ थी प्राइवेट, उसको हम लोग ट्रैवल यानी ओपन नहीं कर सकते. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said Einstein put the wedding off. आइंस्टाइन की इच्छा थी कि वो मिलेवा से शादी करे, बट उसकी मम्मी उसको मना कर रही थी. His mom was against this. उसकी मम्मी ने उसको मना किया. क्यों मना किया? क्योंकि वो जो लड़की थी मिलेवा, वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी. और सबसे मेन थिंग ये थी कि 3 साल बड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो चलो एक्सेप्ट कर लेते, पर वो उससे भी होशियार थी. बराबर. तो आइंस्टाइन की मॉम ने आइंस्टाइन को ऐसा बोला कि तू एक बुक की तरह है, बुक, क्योंकि तुम लोग हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तुम लोग दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं, और वो लड़की भी तेरी तरह ही है, तो तुम दोनों की बनेगी नहीं. उसकी मम्मी ने क्लियर उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भले तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, बट शी इज लाइक बुक टू यू बिकॉज यू आर ऑल्सो बुक. वो उसकी मम्मी आइंस्टाइन को ऐसे बोलती थी, इसलिए वो लड़की से तू शादी मत कर. तो थोड़े सालों के लिए आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, यानी थोड़े समय के लिए उसने शादी जो है वो रोक दी, उसने नहीं की शादी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 और 1903 में उन्होंने शादी की एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे थे, आइंस्टाइन के 2 बेटे थे. बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. पर कुछ ऐसा समय आया कि जिसके दौरान उसकी जो वाइफ थी उसको हाउसवाइफ का काम करना पड़ा, और एक्चुअली उसने कभी हाउसवाइफ का काम किया नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसमें था? बुक्स में, क्योंकि वो भी आइंस्टाइन की तरह ही होशियार थी, जिसकी वजह से उन दोनों की बनने नहीं लगी थी. उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, अनबन शुरू हो गई, एंड आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. और देखो विद इन कितने 1903 में उसने शादी की, यानी 16 साल के अंदर ये जो कपल है इन लोगों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया. एंड आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी वक्त उसने उसके कजिन के साथ शादी की आइंस्टाइन ने, जिसका नाम था एल्सा. मीन्स व्हाट? अभी देखो, काफी बार यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी. काफी बार क्या होता है, देखो अभी तुम लोग तो बहुत छोटे हो, पर थोड़ी बड़े बच्चों की बात करें जो 24-25 ईयर्स ओल्ड होते हैं, एंड दे स्टक वी कैन कॉल लव, मीन्स दे विथ लव इन अदर पर्सन, दूसरे लोगों के साथ. जैसे कोई लड़का है तो वो लड़की के साथ प्यार करता है, कोई लड़की है वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ उसको चाहती है, पर समटाइम्स उसके पेरेंट्स को मना करते हैं कि नहीं तुझे नहीं करना है, तुम्हारी नहीं बनेगी. तब वो लोग क्या करते हैं? भाग के शादी कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, पेरेंट्स को झगड़ा करके वो लोग अलग रहते हैं. इसका इफेक्ट क्या होता है? 4-5 साल तक वो लोग अच्छे रहते हैं, और उसके बाद उनका डिवोर्स होता ही है. सेम थिंग हैपेंड हियर. अभी आइंस्टाइन तो कोई ऐसे आलतू फालतू बच्चा नहीं था, ही वाज अ जीनियस. कितना होशियार था वो. उसकी मम्मी ने उसको मना किया, उसने अपनी मॉम की बात भी मानी, पर बाद में उसको ऐसा लगा कि उसके लिए दूसरी कोई लायक लड़की है ही नहीं, इसलिए उसने मिलेवा से ही शादी की. आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग ईयर्स थे शादी के, वो अच्छे गए, 2 लड़के हुए, बट थोड़े सालों के बाद जब उसकी वाइफ को हाउसवाइफ का रोल करना पड़ा, तो शी वॉज नॉट मेड फॉर हाउसवर्क, क्योंकि वो लेडी हाउस के लिए थी नहीं, वो बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से उसकी और आइंस्टाइन की बनी नहीं. और विद इन 16 ईयर्स जो उनकी शादी को हुए थे, उसमें उसको डिवोर्स देना पड़ा, और उसने उसी ईयर में अपनी कजिन के साथ आइंस्टाइन ने शादी की. उसकी कजिन का नाम था, आइंस्टाइन की कजिन मीन्स एल्जा, उसके साथ उसने शादी की. देखो, यानी उसकी मॉम के जो वर्ड्स थे वो इम्पोर्टेंट थे कि नहीं? यस. यानी यहाँ पे यही बता रहा है आइंस्टाइन कि हमें हमारी इच्छा तो है, चलो करनी भी चाहिए शादी, बट पहले हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपने पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसे. आगे बढ़ते हैं. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. यहाँ पे आइंस्टाइन का बोला है, फिर ये जो उसका चैप्टर था वो क्लोज हो गया, और धीरे धीरे उसका दुनिया में फेम जो है बढ़ता गया. फेम मीन्स पॉपुलैरिटी, ही वॉज वेरी फेमस. और 1915 में
उसने जो 1903 में वो थ्योरी बनाई थी, कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको पब्लिश किया, लोगों के सामने उसने बताया। और उस वक्त जो सन एक्लिप्स हुआ था 1919 में, उसने भी ये प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी बनाई है वो ट्रू है, जिसकी वजह से उसका फेम बढ़ता गया। उसके साथ साथ उसने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी लोगों को बताया और न्यूज़पेपर में उन्होंने प्रोक्लेम किया कि ये एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। फ्रॉम दैट टाइम आफ्टर आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और 1921 में उसको फिजिक्स के अंदर मास्टर होने की वजह से नोबेल प्राइज मिला। तुमको पता है नोबेल प्राइज इज द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ द यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर सबसे बड़ा अवार्ड हुआ तो वो नोबेल प्राइज है जो 1921 में आइंस्टाइन को मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उसको दुनिया से इन्विटेशंस मिले, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, काफी सारा ऑनर उसको मिला, न्यूज़पेपर में उसके प्रेस के अंदर तारीफ के ऊपर तारीफें हुई। सो आइंस्टाइन गॉट द, वी कैन से दैट, फेम आफ्टर द years of 1919, after the theory when he published the theory of relativity. फिर when the Nazis came to power in Germany in 1933, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर नाजीज, तुमको पता है जर्मनी जो है, जर्मनी के अंदर ये फ्रेंच के ऊपर जर्मनी का प्रभाव था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे आए। और 1933 में जब नाजी जर्मनी में आए तो आइंस्टाइन वहाँ रहा नहीं, वो यूएस चला गया। 5 years later, the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicists in uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. फिर वो लोग दूसरे साइंटिस्ट के साथ, मीन्स आइंस्टाइन जो है 5 साल के बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन बर्लिन में किया, जिससे हम लोग एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं। पर जब उनको ऐसा लगा कि फासिज्म, ये पता है ना तुमको, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स है, फासिज्म, नाजिज्म, बराबर, तो हिटलर वगैरह जो इसके अंदर आते हैं, मुसोलिनी, हिटलर, तो ये बहुत पावरफुल रूलर्स थे। तो ये साइंटिस्ट डर गए उन लोगों से, उनको ऐसा लगा कि शायद ये लोग फैसिज्म और नाजिज्म, ये जो पीपल है, उनके जो लीडर है, वो हमारे ऊपर प्रेशराइज करेंगे, हमको जबरदस्ती करेंगे, तो तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। जिसकी वजह से सारे साइंटिस्ट जो है, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन, वो लोग एक खौफ में थे। उनको ये डर था कि शायद ये लोग हमें क्या करने को बोलेंगे, अभी एटॉमिक बॉम्ब का यूज करने को बोलेंगे, जो दुनिया को हार्म पहुंचा सकता है। ये चीज से भी साइंटिस्ट वाकिफ थे। फिर अभी क्या हुआ देखो, एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. फिर आइंस्टाइन के साथ जो कलीग्स यानी उसके साथ काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन को रिक्वेस्ट की कि तू एक लेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिख। तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये तुम लोग पढ़ चुके हो एसएस में। 2 अगस्त 1939 को उसने वार्निंग दी और उसने बोला कि एक सिंगल बॉम्ब अगर हम लोग एक पोर्ट के ऊपर डालते हैं, एक छोटा सा, तो भी वो जो असर है वो सिर्फ पोर्ट को नहीं करेगा। कोई भी ले लो, एयरपोर्ट ले लो, कोई भी पोर्ट ले लो, वो एयरपोर्ट को या कोई पोर्ट को नुकसान नहीं करेगा, उसके आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये वार्निंग उसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनको दी थी, पर उन्होंने उसके लेटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका ने सीक्रेट बॉम्ब बनाया और वो जापान के 2 शहरों के ऊपर डाला, जिसका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी, अगस्त 1945 में। तुमको पता है, जिसकी वजह से पूरा जापान बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत खतरनाक थे। स्टूडेंट, तुमने कभी वीडियो भी यूट्यूब पे तुम लोग देखना कि व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ बॉम्ब फॉल्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि उनके किसी के कान गल गए, किसी के नाक गल गए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके बच्चे प्रॉपर पैदा नहीं हुए। दे हैव टेकन द बर्थ एज हैंडीकैप बच्चे पैदा हुए। ये किसका इफेक्ट था? बॉम्ब का। फिर उसके बाद से आज तक वैसा किसी ने भी किया हुआ नहीं है। तो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखो, आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to United Nations. In it
he proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms building up and using his popularity to campaign for peace and democracy. उसके लेटर के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट उसकी वजह से हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो बड़े बड़े सिटीज थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। ये डिस्ट्रक्शन का जो इफेक्ट है आइंस्टाइन के ऊपर डीपली पड़ा। उसने उसके इन्वेंशंस को साइड में रख दिया और वो पॉलिटिक्स के अंदर चला गया। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी आइंस्टाइन की, जिसका फायदा लेकर उसने बड़े बड़े कैंपेन्स किए, बड़े बड़े मीटिंग्स लिए, सेमिनार्स लिए और उसके अंदर लोगों को उसने पीस और डेमोक्रेसी के बारे में समझाया। एंड when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as the scientific genius. और जब उसकी डेथ हुई आइंस्टाइन की, उसकी डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, तब वो एक विजनरी के नाम से फेमस हुआ, वर्ल्ड सिटीजन के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि वो साइंटिफिक जीनियस भी था और एक अच्छा लीडर भी था। विजनरी मीन्स अच्छा लीडर। उसने विजन बनाया था कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए, मेरे देश के लोगों में शांति और डेमोक्रेसी आनी चाहिए। मीन्स ये जो है आइंस्टाइन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे तुमको आइंस्टाइन का कैरेक्टर स्केच मिला कि आइंस्टाइन कैसा इंसान था। ही वॉज रियली अ वेरी डिफरेंट पर्सन। उसके जैसे कॉपी हम लोग कर भी नहीं सकते, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि डोंट कॉपी अदर्स। कभी भी ऐसा मत बोलो कि मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है या मुझे आइंस्टाइन की तरह बनना है। हमेशा ऐसा बोलो कि मुझे मेरी तरह बनना है, क्योंकि भगवान ने हर एक पीस अलग अलग बनाए हैं। मैं हूँ अलग नमूना हूँ, तुम लोग हो अलग नमूने हो, हमारी तरह कोई नमूना दूसरा बनेगा नहीं। इसलिए नेवर कंपेयर विद अदर्स, नेवर मेक द कंपैरिजन विद अदर्स। इसलिए हम लोग जो है उसमें ही आगे बढ़ो। विद दिस यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी देखो तुम्हारा वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। तुमको यहाँ पे लिखना क्या है? मुझे काफी बच्चों ने पूछा कि मैम लिखना क्या है, लिखना क्या है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पूरा लिखना है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। और इसके अंदर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में भी तुमको कुछ ऑप्शंस दिए हैं एमसीक्यू। तो ये चैप्टर का तुमको थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज दोनों टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के साथ तुम्हारी इंग्लिश के जो नोटबुक तुमने बनाई है उसमें कंप्लीट करने हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक ये कंप्लीट होने चाहिए। विद दिस बाय बेटा।